Hello everyone, myself Manish Maurya and today we are going to study about the list. List is a sequence in which the elements are written as a list of the comma separated value between the square brackets. The key feature of the list is that it can have the elements that belongs to the different data types. Okay, so let us see what is the list and what is the syntax of the list. देखिए लिस्ट में आप जब एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि दे शुड बी कॉमा सेपरेटेड एंड दे शुड बी इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. द एलिमेंट्स वैल्यू कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल देखिए इसका सिंटेक्स कैसा रहता है. लिस्ट नाम दे दिया लिस्ट वन, देन राइट sorry brackets and then afterward we will put the elements by the commas. सबसे पहले हम we will place the number values like 1 2 3 4 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma f. Make a list and we are now going to listing. Now we have saved our list, then we are going to print it. It is list 1. Similarly we can also place the character list like this one, list 2. In the characters we use the quotes. That one. इसके अलावा we can also do the combination of the elements like this one, when we can put the numbers and the characters at the same time in the list, comma h a j comma a n and so on. When we have to end we will place the square bracket like this one and we are going to see. We can also put the strings as a part of the list like hello comma students we can also place the strings in the list. Okay. And we are going to print our third list and also our fourth list. We have seen that we can use the multiple data types as the elements and the combinations also. We can also place the floating point values here 3.4 comma 5.6 comma hello 7.8 comma 9 comma 34 and so on. We can see that we can place multiple values in the list. Okay. हमें कोई भी ऐसा फिक्स नहीं करना है कि नहीं एलिमेंट्स आपके फिक्स हैं कि आपको इंटीजर्स ही लेने हैं या कैरेक्टर्स ही लेने हैं या स्ट्रिंग्स ही लेने हैं और यू कैन प्लेस द फ्लोट वैल्यू. इट इज़ नॉट फिक्स्ड. आप चाहे वो एलिमेंट ले सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सिंगल एलिमेंट टाइप भी हो सकता है. दैट ऑल टाइप्स कैन बी ऑफ द can be used as the elements of the list. This is the declaration of the syntax or definition of the syntax. In the definition, first we will place the name like this one. We have placed the list 1, list 2, list 3, list 4, and then afterward we will place the elements by separating them using the comma. हम उन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे. जैसे हमने यहाँ एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया 1 2 3 4 5 6 7. These all are comma separated elements. Okay, or then we will include them in the square brackets.
आपको याद रखना है कि उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रखना है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करोगे तो इट विल बी अदर डेटा टाइप, अदर डेटा स्ट्रक्चर, इट विल बिकम अदर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है जब भी आपको लिस्ट बनानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ द सिंटेक्स। द नेक्स्ट थिंग इज द एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ द लिस्ट, ठीक है। आपको लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो उनकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। देखिए, जो जब भी हम एलिमेंट को लिस्ट में प्लेस करते हैं, वी विल पुट द एलिमेंट्स इन द लिस्ट, the index number is provided to the element. We cannot change that index number. We cannot change the index number in that one. That is 0. The first value will be 0, then 1, 3, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको इंडेक्स वैल्यू विल बी इट विल टेक द इंडेक्स वैल्यू 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। इस तरीके से सीक्वेंस में वैल्यू चली जाएगी। हमेशा इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा 0 रहेगी, सेकंड की 1 रहेगी। इस तरीके से जो भी उसका पोजीशनिंग होगी उसमें आप एक माइनस करके उसका इंडेक्स नंबर जान सकते हैं, ठीक है। अब इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब एक्सेस करने के कई तरीके हैं। डायरेक्टली यू विल एक्सेस द एलिमेंट, लाइक अगर मुझे क्या कहते हैं लिस्ट 2 में से थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड एलिमेंट व्हाट विल बी थर्ड एलिमेंट, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो थर्ड एलिमेंट अगर मैं लिखूंगा तो थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई। इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इंडेक्स क्या दूंगा, 0, एंटर। इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट में सेकंड एलिमेंट देखना चाहूँगा, देन आई विल गिव द इंडेक्स 2। देन मैं इसी तरीके से लिस्ट में एलिमेंट थर्ड देखना चाहूँगा तो आई विल गिव 2। मैं लिस्ट में एलिमेंट फोर्थ देखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे 3 प्लेस करूँगा इंडेक्स वैल्यू को, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप फिफ्थ एलिमेंट को अगर प्रिंट करना चाहेंगे, देखिए जैसे ही अब फिफ्थ एलिमेंट हमने है ही नहीं, बिकॉज देखिए हमने फोर्थ एलिमेंट ई दी, ये 4 दिया है और कितना है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जैसे ही 5 हुआ, देखिए तो क्या हुआ, इट इज शोइंग दैट आपकी जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज हो गई। मतलब एलिमेंट कहाँ था, लास्ट एलिमेंट क्या था, देखिए लास्ट एलिमेंट था आपका, इट वॉज 4। ई आ गया, ई के बाद हमारी लिस्ट में एलिमेंट ही खत्म हो गया। तो अगर आपने लिस्ट में एलिमेंट के से ज़्यादा इंडेक्स नंबर दिया तो दैट विल, वो क्या एरर देगा कि आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, आप कभी भी आउट ऑफ रेंज नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी तरीके से मैंने तो ये मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं पोजीशन में नेगेटिव वैल्यू दी, जैसे मैंने -1 दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं -1 दूंगा तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगा, ये एरर नहीं देगा। देखिए रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाता है। जब आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। जैसे आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, जैसे इसका साइज क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1, मतलब लास्ट एलिमेंट को ये प्लेस करेगा -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान स्टार्टिंग यहाँ से 0 से लेके 4 तक रहती है और नेगेटिव में जब स्टार्ट करते हो तो -1, -2, -3। तो इसका मतलब अगर मैं लिस्ट में वैल्यू दूं, लिस्ट देन -2, क्योंकि ओके, oh sorry, because I have not put it the list name properly, it will be list 2 not list, there is no list, list 2 -2, तो क्या आ गया, D, ठीक है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको ये एरर्स भी समझनी होंगी, जैसे क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर आए तो आपको तुरंत समझना होगा कि ये प्रोग्रामिंग एरर क्यों आई, क्या ये एरर हमारी टाइपिंग मिस्टेक है और कोई लॉजिकल मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे एरर क्या दिया है, द टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सुपर, ओ सॉरी, सबस्क्रिप्टेबल, मीन्स जो हमने यहाँ पे टाइप दिया है ये गलत है,
ठीक है, लिस्ट नाम का कोई टाइप ही नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड। लिस्ट एक कीवर्ड है। तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी थी, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द एरर। जैसे यहाँ पर आउट ऑफ इंडेक्स दिखाया ना था, तो हम देखिए हमने जैसे 5 लिखा, आउट ऑफ इंडेक्स एरर दिखाया। तो ये एरर्स को भी आपको समझना होगा, ताकि आप जब प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो कहीं ना कुछ एरर्स जरूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एरर्स ना करें, क्योंकि उसको प्रोग्राम को जब आप कंप्लीट कर लेंगे देन एरर्स रिमूव हो जाएंगी। आप उससे पहले आपकी छोटी छोटी एरर्स आएंगी, तो आपको उनको समझना भी होगा, और धीरे धीरे जो जो एरर्स आए उनको समझिए और करते रहिए। अब इसके अलावा नेगेटिव हमने करके देख लिया, नेगेटिव नंबर को एक बार और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट हम दूसरी ले लेते हैं इस बार, माइनस हमने 3 करा। ठीक है, अब देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं आर देयर, तो -3 विल बी एक्सेप्टेबल। देखिए स्टूडेंट आ गया, मतलब सेकंड एलिमेंट आपका स्टूडेंट होना चाहिए। देखिए सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। तो अगर -4 लिखेंगे यहाँ पर, तो दैट विल बी, लिस्ट 4 में हमने -4 लिखा, तो दैट विल बी प्रिंट हेलो। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर एलिमेंट की सीरीज को प्रिंट करना चाहें, मतलब तो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लिस्ट लिखी है हमने, जैसे लिस्ट 4 ले ली। ठीक है, अब इसमें करना क्या होगा, फर्स्ट हमें ये बताना होगा कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट किया, देन हम कोलन लगाएंगे, देन आफ्टरवर्ड जहाँ पे भी जिस एलिमेंट तक हमें चाहिए उससे 1 हमेशा वहाँ पर एलिमेंट प्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 तक चाहिए, ठीक है, तो 0 से 3 तक इंडेक्स की वैल्यू को वो प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, आप जैसे ही एंटर करोगे, ठीक है, तो 0 1 2 3 एलिमेंट्स को ये प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस करोगे वो पर्टिकुलर इंडेक्स से 1 लेस होगा। ठीक है, ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 से, अगर मैं थर्ड एलिमेंट तक नहीं जाएगा, जैसे 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक नहीं जाएगा, हमेशा एक इंडेक्स ऑलवेज 1 लेसर 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर -3 लिखा, देन 0 कोलन एंड देन 4, मीन्स 0 से लेके थर्ड एलिमेंट थर्ड इंडेक्स नंबर तक प्रिंट होगा, लाइक दिस में 3 4 H4J। अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इस तरीके से है। चाहे तो आप यहाँ पे इससे प्रॉपर्टी आपका ये, तो 0 इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, और फोर्थ यहाँ पर 4 इंडेक्स नंबर ये है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इंडेक्स नंबर आप लास्ट में प्लेस करेंगे उससे एक लेसर स्टेप में आएगा, तो वो यहाँ पर प्लेस करा जाएगा। दिस इज योर द सीरीज। आप इस तरीके से अपनी लिस्ट, अगर आपने कोई भी एलिमेंट नहीं दिया देन इट विल रन लाइक दिस वन, और अगर आपने दोनों इंडेक्स दिए तो आपका वैल्यू किस तरीके से आएगी, जैसे 0 to 4, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए अपनी लिस्ट को सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, सॉरी लिस्ट 3 को सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ मतलब जैसे मैं उसे h से प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो h का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, 1, और देन मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और मैं लास्ट तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वहां तक इसे रन कराएगा। देखिए कैसे, दिस में h से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक प्रिंट हुआ, 9 तक। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं लिस्ट 3 एलिमेंट नंबर थर्ड सेकंड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड, एंड देन वी विल एंड टू दिस वन। तो देखिए अब 4 से स्टार्ट होगा एंड दिस वन। सिमिलरली आप इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। हम स्टार्ट से प्रिंट कराना चाहते हैं लेकिन लास्ट एलिमेंट से नहीं कराना चाहते, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, फर्स्ट इंडेक्स नंबर को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, कोलन लगाएंगे, और देन जहां तक आप प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे
फॉर एग्जाम्पल मैं जे तक प्रिंट कराना चाहता हूँ, जे का जो इंडेक्स वैल्यू है डेट इज क्या है आपकी जे की इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। तो 3 है तो मैं यहाँ पे क्या प्लेस करूँगा, आई विल प्लेस 4, क्योंकि हमेशा क्या होता है इंडेक्स नंबर जो भी हम प्लेस करते हैं -1 तक रन करता है, तो थर्ड इंडेक्स नंबर तक चाहिए तो हम लिखेंगे 4 और जे तक प्रिंट हो जाएगा। तो सिमिलर हम चाहे तो यहाँ पर क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं देंगे, देन इन डैट केस आपका लिस्ट जो होगी वो एंड तक जाएगी। अगर आपने फर्स्ट जो स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं दिया देन इट विल go to start from the starting but end at the where you are giving the stop index number, जहाँ पे भी आप stop index number दोगे वहां तक वो रन करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपने लिखा दिस वन, तो ये जो है ये जो आपने लिखा है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों नहीं दिए, दिस इज इक्वलेंट टू दिस वन, जहां पर आपने ये और दिस वन तो बोथ आर दी सेम। देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हुई, यहाँ पर भी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हुई। ओके, अब इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए मैं लिस्ट में एलिमेंट्स को, ठीक है, जंप कराना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट जो है वो हमारी क्या कहते हैं वन एलिमेंट स्किप कर करके प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 2 कर दूँ। ठीक है, दिस इज द जंपिंग स्टेटमेंट, कि जंप कराने के लिए या स्टेपिंग कराने के लिए कि कितने स्टेप्स के बाद अगला एलिमेंट प्रिंट हो, तो जो नंबर यहाँ पे दे देंगे उतने स्टेप्स जंप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट एलिमेंट 3rd है तो सेकंड कह रहे हैं तो 1 एंड 2, सेकेंड एलिमेंट पर आके ही वो प्रिंट करेगा। देखिए E4 फिर के, मान लीजिए मैं बड़ी लिस्ट देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। लिस्ट मैं एलिमेंट्स दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए, एक लार्ज लिस्ट बन गई जहाँ पे हमें स्टेपिंग करना और आसानी से समझ में मैंने लिखा लिस्ट 45, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट प्रिंट हो वो स्टार्टिंग से तो प्रिंट हो, मतलब स्टार्टिंग से ना प्रिंट हो, सेकंड एलिमेंट से प्रिंट हो, मीन्स आपकी बी से प्रिंट हो। सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, ये दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट से प्रिंट हो, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, इस फर्स्ट का 0 देन 1। ठीक है, तो 1 के तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। ठीक है, ओके, देन हमने कोलन लगाया, देन आफ्टरवर्ड हम चाहते हैं कि कहाँ तक प्रिंट हो, क्या कहते हैं आपकी लास्ट तक प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे अभी हमने ब्लैंक छोड़ दिया एंडिंग और हम चाहते हैं हर सेकेंड एलिमेंट प्रिंट हो, तो यहाँ पे हमने ट्रू लिखा। मैं इस बार चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको एंड तक ही रन कराऊंगा बट हर थर्ड एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए। देन मैंने वहाँ पे 3 प्लेस कर दिया तो थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, बी वाले अगर सेकेंड एलिमेंट में देखिए तो बी के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है एच, 1 2, फिर एच के बाद 1 2 जे आया, फिर जे के बाद 1 2 9 आया, 9 के बाद 1 2 स्टूडेंट्स आया। इस तरीके से वर्किंग है। अब इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम 3 स्टेप्स वाले में देखें तो वी आर सीइंग दैट 1 बी से 4 तक का जंप कितना है 1 2 एंड 3, सिमिलरली 4 से 9 तक का 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस सिमिलरली इस तरीके से आप क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्दर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।